Hello friend, welcome in TechMo the YouTube channel. Today we will discuss and live demo station of the DC microgrid final year project idea. It is the completely live project and here we will see the project how does it work. So just we will introduce the first. Hello friend, welcome in TechMo the YouTube channel. Today we will discuss and live demo station of the DC microgrid final. So this project basically for engineering project, engineering branch students, BTech students for mechanical engineering, engineering and electronics and telecommunication engineering. So the first I will introduce the major components which are used in this project. The first, this is the windmills. Basically, this is the renewable energy based DC microgrid. It is the live. Whenever the solar panels or we can say the solar energy or wind energy are available, according to that, this microcontroller will connect or disconnect the load from this DC grid. So first, I will introduce here. So this is called as a windmills. So this is the windmills. Here I have used the dynamo. So this dynamo which is generate the 12 volts and 1000 milliampere currents. So when we will move this one, so here electricity will be generated and this electricity it will be shown by this LED. We can say that here. So part of this project, and second is a solar. So when we flash on this solar, then electricity will be generated and this LED will be glow. So right now this LED it is not work because it is the damage. So but here output will get whenever we focus the lights on the solar panel, then output will get over here. So next is, this is our the heart or main part of this project, that is called as a ASP32 microcontroller. As you can see as the OLED. So this is the OLED. You can see here, this is the OLED. This is called as a OLED. And it is called as a ASP32 microcontroller. So this is the ASP32 microcontroller. So and this is the relay. We have used here a sugar group relay. It is required 12 hours of their operations. So here, so this is called the relay driver. This is called as a relay drivers. So here we have used the transistors and one resistors and this one LED. So these transistors will be conducted when your ESP32 provide the appropriate voltage to this transistors, and these transistors will be drive by this relay. So and here we have connected to 30 volt power supply to the bulb. So now, so this is the power supply unit. Here this unit which is generate the 12 volt and the 5 volts, because ESP32 required a plus 5 volts. So that's why we have used here the IC7805 microcontroller. So now this is the we can say that the filters. This is the transformer. So these transformers we have used the step down transformer. Primary voltage definitely it is the 230 volts and the 5 ampere, and the output sides it is the 12 volts down voltage and 2 ampere currents. So here we have used the
filters. You can see there, this is the filter. You can see this is the it is the rectifiers. Here we have used the half wave rectifier, then this is the filters, and here we have used the regulators. So this were entire circuits will be provided total plus 5 volt to this circuit. Now, so this unit which is indicate that whether solar or wind energy available or not. So this one unit which will be provide the appropriate voltage to this ESP32 माइक्रोकंट्रोलर. सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे दो रेन्यूएबल एनर्जी यूज़ की है, एक है विंड एनर्जी और दूसरी है सोलर एनर्जी. ये दोनों एनर्जी जो अवेलेबल है उस हिसाब से ये सर्किट क्या करता है, उसको कनेक्ट करता है उस एनर्जी को, और वो एनर्जी कन्वर्ट होके 230 वोल्ट पावर सप्लाई में और उसको बल्ब को कनेक्ट कर देती है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ESP32 माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है और यहाँ पे OLED यूज़ किया है. तो यहाँ पे ये सारे यूनिट वी कैन से दैट कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं. तो हम अभी देखते हैं इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन. तो मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि कैसे वर्क होता है. यहाँ से ये जो ट्रांसफार्मर से हमने यहाँ से पावर सप्लाई लिया है +5 वोल्ट DC, बिकॉज हमारे ESP32 को +5 वोल्ट लगता है इसके लिए. और उसके बाद यहाँ पे ESP32 OLED ट्रांजिस्टर्स एंड रिले यूज़ किया है हमने. और यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं we can say zener diode 3.3 volt के, because microcontrollers only understand the 3.3 volts or less than 3.3 volts. That's why we have used the two zener diode over here. ये zener diodes किस लिए यूज़ किए हैं कि ESP32 को ये जो वोल्टेज है 12 वोल्ट्स और इसका सोलर का 12 वोल्ट है, उसको वो कन्वर्ट करेगा 3.3 वोल्ट को और हमारे ESP32 को देगा. तो ESP32 चेक करेगा कि किस सोर्स का वोल्टेज अवेलेबल है, उससे वो क्या करेगा, यहाँ पे रिले को कनेक्ट करेगा, रिले को एक्टिवेट करेगा और यहाँ पे सोर्स को लोड के साथ कनेक्ट करेगा. तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक है कि हमने यहाँ पे एक DH11 यूज़ किया है. सेंसर है, ये टेम्परेचर सेंसर है. अगर इस माइक्रोग्रिड का अगर टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज चला जाता है 36°C से, तो ये यूनिट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर फायर लग सकता है कभी, या हाई टेम्परेचर के कारण बहुत सारे डिवाइसेस भी सस्टेनेबल या जो वहाँ पे सोफिस्टिकेट सर्किट है वो डैमेज हो सकता है, तो वो इससे ओवरकम होगा. ये जो हमने यहाँ पे एक सेंसर यूज़ किया है, ये सेंसर क्या करेगा, हाई टेम्परेचर से या फायर से इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी देखते हैं. तो हम अभी इस सर्किट को ऑन करते हैं. यहाँ पे सर्किट को ऑन किया है. यहाँ पे पावर सप्लाई आप देख सकते हो और यहाँ पे OLED पे आप देख सकते हो डिस्प्ले क्या हुआ है, टेम्परेचर नॉर्मल 28.10 एंड यहाँ पे बता दिया है कि टेम्परेचर स्टेटस नॉर्मल है, सोलर एंड विंड आर नॉट अवेलेबल्स और चार्जिंग ऑफ है, अलार्म भी ऑफ है. जैसे ही टेम्परेचर बियॉन्ड रेंज हो जाता है यहाँ पे अलार्म बज जाता है. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो विंड है, विंड को घुमाते हैं. जैसे विंड को घुमाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो बल्ब ऑन हो चुका है. और यहाँ पे आप LCD डिस्प्ले पे दे सकते हैं कि विंड इज़ अवेलेबल. अभी जैसे ही इसको मैं बंद कर दूंगा
पावर सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं, विंड का और सोलार का भी नहीं है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि एलईडी हमारा क्या हो रहा जो लोड है हमारा ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जैसे घुमाएंगे हम, यहाँ पे देख सकते हैं अगर फास्ट घुमाना है इसको, अगर जैसे फास्ट घुमाएंगे तो ये चालू होगा और यहाँ पे एलसीडी डिस्प्ले पे भी दिखाएगा कि सोर्स एंड विंड्स आर अवेलेबल। अभी यहाँ पे जैसे फोकस मारेंगे सोलार पे तो देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। देखो सोलार पे हमने फोकस मारा है, ठीक है। सोलार पे जैसे फोकस मारा है तो यहाँ पे एलईडी क्या हो गया, हमारा लोड क्या हुआ, डीसी से डीसी ग्रिड से ऑन हो गया है। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है 28.60 है और यहाँ पे विंड अवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन उल्टे हो गए। तो यहाँ पे चार्जिंग ऑफ, ठीक है। तो अगर सोलार और विंड दोनों अगर अवेलेबल होते तो यहाँ पे दिखा देता है। अगर एक साथ अगर दोनों घुमाएंगे तो देखते क्या होता है। देखो सोलर एंड विंड्स अवेलेबल, अभी दिखा रहा है सोलर और विंड अवेलेबल, ठीक है। अगर ऐसे अगर कंटिन्यूसली दोनों अगर अवेलेबल रहता है तो लोड हमारा कंटिन्यूसली ऑन है। अभी अगर दोनों छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हमारा जो लोड है वो ऑफ रहेगा क्योंकि यहाँ पे विंड भी एनर्जी नहीं है और सोलार भी एनर्जी नहीं। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली सोलार या विंड एनर्जी होना चाहिए तो ही ये हमारा सर्किट क्या होता है, वर्क होता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में भी बता देता है कि यहाँ पे सोलार एंड विंड्स आर नॉट अवेलेबल। जैसे हम इसको घुमाएंगे इन दिस वे तो ये सर्किट क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये प्रोजेक्ट वर्क होता है हमारा। अभी यहाँ पे सोलार और विंड दोनों अवेलेबल है तो इसके कारण ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये एक डीसी माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट है जहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं कि माइक्रो डीसी ग्रिड भी बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 12 वोल्ट पे 12 वोल्ट वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं बाय द सोलार एंड दी विंड एनर्जी से। तो यहाँ पे दोनों में से अगर कोई भी सोर्स अवेलेबल रहता है तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है लोड के साथ। अगर विंड अवेलेबल है तो विंड होगा या सोलार, अगर दोनों भी अवेलेबल है तो दोनों का एडिशन होगा और वो सोर्स को कनेक्ट करेगा। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट वर्क होता है और ये प्रोजेक्ट फाइनल ईयर इंजीनियरिंग का है। अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।